topics of the chapter which we have done या which we have completed till yesterday. First was introduction, वो complete हो चुका था. After that, a mosaic of religious beliefs and practices. That point, that I think teacher also complete. Then within that हमने जो है सब topics लेने start किए थे. First was the integration of cults, completed. Then second topic जो हमने complete किया था, that was difference and conflict, completed. Then after that, final conclusion related to it, completed. Then after that, third heading was poems of prayer, early traditions of bhakti, यानी कि bhakti traditions या bhakti movement, completed. Then studying it in elaboration, bhakti of two types, saguna nirguna, वो हमने पढ़ लिया था. After that, regional level पर हम उसकी study में गए. First was from Tamil Nadu, that were of Alvars and Nayanars. Then B, in Alvars and Nayanars, I think penetrated into the detail of it. Then first subtopic was attitude of them towards caste. Second, women devotees related to them. And third was relations with the state. The next coming on to, we did the Veerashaiva tradition in Karnataka. Then next on to we came religious ferment in North India. Then after that we started another half of the chapter, that is Sufi traditions or Islamic traditions. We started from new strands in the fabric, that were Islamic traditions, in which we first of all studied faiths related to it, faiths of rulers and subjects related to it. Then after that we went into study different concepts related to Islamic traditions. One was Zimmi, second was Jizya, with references. Then the popular practice of Islam containing 6 features. Then identity of Islam according to different regions हमने पढ़ा. Then names of communities as per different regions, वो भी हमने पढ़ा in Islam. Then module was completed. Then we came on to Sufi traditions, that was module 2, in which we started the growth of Sufism yesterday, जिसमें कि हमने इसका initial basic और introduction पढ़ लिया था. इसमें पहला हमने जो सब टॉपिक लिया था वो लिया था खानकाहास and silsilas, in which खानकाहास was complete. Now coming on to silsilas. Who were silsilas? What was the detail related to silsilas? What were the features of silsilas? What were the habits and जो भी है. Let's see. Silsilas कौन थे भाई? पहला point. Evolved and crystallized in the Islamic world in the 12th century. पहली बात, खानकाहास और सिलसिलास में खानकाहास सिलसिलास के सीनियर माने जाते हैं. सेकंड पॉइंट, इसीलिए हम कहते हैं कि सिलसिलास इस्लामिक वर्ल्ड में खानकाहास के बाद एवोल्यूट हुए. आप कहोगे एवोल्यूट का मतलब एग्जिस्टेंस उनकी नोटिस की गई. होंगे पहले से भी, बट आई थिंक उनकी कम्युनिटी एग्जिस्टेंट लेवल पर कब आई? नियर बाय इन द 12th century. इस्लाम से जुड़े हुए देशों में या इस्लामिक ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाली कंट्रीज में सिलसिलास का जन्म या सिलसिलास का एवोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन मतलब फिल्ट्रेशन, यानी कि ये अलग से एक ग्रुप बना. कब या बनना शुरू हुआ कब से? 12th century से. सेकंड पॉइंट, अ चैनल टू ट्रांसमिट द स्पिरिचुअल पावर टू द डिवोटीज by acting as a continuous link between the disciple and the master, Prophet Muhammad. सवाल ये है, सिलसिलास हम नॉर्मली किन्हें कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ सिलसिलास, तो आप उससे पहले आपको खानकाहास की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. भाई खानकाहास एक्चुअली एक बॉडी ऑफ लिटरेट्स थे रिलेटेड टू कुरान, who were acclimated of Quran studies, and on the basis of their studies of Quran, they used to practice Sufi traditions, and on the basis of which they executed a Sufi movement. यानी कि खानकाहास वो कम्युनिटी थे इस्लाम में जिन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की. अंडरस्टूड? तो एक्चुअली एक तरीके से हम कह सकते हैं दे वर द ऑफिसर्स ऑफ द मूवमेंट, या दे वर द, आप कह सकते हैं लिटरेरी पीपल, पढ़े लिखे फिलोसोफर्स टाइप लोग थे जिन्होंने इस्लाम के ट्रेडिशंस की, आप कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन की, जिससे कि फिल्ट्रेशन के बेसिस पर इस्लाम को आगे प्रमोट और प्रवोक किया जा सके. उसके बाद दूसरी कम्युनिटी सिलसिलाज आई. सिलसिलाज का डिपार्टमेंट खानकाहास के मुकाबले काफी लिमिटेड था. उन्होंने अपने आप को सीमित कर रखा था. ये इस तरह के लोग थे कि इनका सिर्फ एक काम था, इनका काम था कि स्पिरिचुअली ये डिवोटीज को कनेक्ट में रखें. किसके साथ? मास्टर के साथ. आप कहोगे मतलब डिवोटीज मतलब भक्त होते हैं. अंडरस्टूड? और डिवोटीज में आप डिसिपल्स को ला सकते हैं. डिवोटीज कौन होते हैं? डिसिपल्स मतलब फॉलोअर्स. यानी कि सिंपली एक चैनल की तरह ये वर्क करते थे, जिनका काम होता था भक्त और भक्त का, जो आप कह सकते हैं भक्त के पैगंबर, जिस पैगंबर की भक्त वो भक्ति कर रहा है,
उस पैगंबर के बीच में और उस भक्त के बीच में एक चैनल के रूप में काम करते थे ये सिलसिला, टू मोर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी बिटवीन देम। यानी कि सिंपल बात है भाई, एक डिसिपल है यानी कि भक्त है, और एक मास्टर है यानी कि उस भक्त का गुरु है। वो कौन है भाई? इस्लाम में तो एक ही माना जाता है, दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद। आफ्टर अल्लाह एक ही पैगंबर है उनके हिसाब से, कोई पैगंबर दुनिया में और कोई है ही नहीं, तो वो प्रॉफिट मोहम्मद है। यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के और प्रॉफिट मोहम्मद के और प्लस इस्लाम के सो कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद के सो कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद के डिसिपल और डिवोटी के बीच का कनेक्शन बनाने में ये अहम भूमिका निभाते थे, because they used to act like a spiritual power, acting like a channel to to keep them connected to each other. Third point, followed special rituals as initiation, taking an oath of allegiance, wearing a patched garment with shaved hair. अब इनके लुक्स पर थोड़ी बात कर लेते हैं। कुछ अलग तरह के ये लोग होते थे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप कहोगे क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए दैट दे वर स्पिरिचुअल बाय हार्ट एंड सोल। तो इसलिए उनके लिए हर चीज स्पिरिचुअलिटी से शुरू होती थी, स्पिरिचुअलिटी पर ही खत्म होती थी। इसीलिए इससे पहले कि वो अपने कार्य को शुरू करें, इससे पहले कि वो अपनी एक्टिविटीज को, या इससे पहले कि वो अपनी जो डूइंग्स हैं रिलेटेड टू इस्लाम उसको शुरू करें, उससे पहले वो एक ओथ लेते थे। व्हेन अ पर्सन यूज्ड टू बिकम अ सिलसिला, या व्हेन अ पर्सन यूज्ड टू बी काउंटेड इन दिस टीम ऑफ सिलसिलास, तो सिलसिला बनते ही पहला काम होता था उसका शपथ लेना, कसम खाना। किसकी कसम खाना? ऑब्वियसली कुरान पर हाथ रख के, अल्लाह को साक्षी मान के, और प्रॉफिट मोहम्मद को अपना माजी मान के कसम खाना। उसके बाद भी पैचर्ड गारमेंट, एक तरीके से वो होते हैं ना कि सूफी संत पहनते थे लंबे लंबे गाउन से, तो अपना एक मतलब एक अलग ही लुक हो जाता था कि नाउ वी आर सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, नाउ वी आर सेपरेट फ्रॉम अदर इस्लामिक पीपल। ठीक है, कसम ले ली, कसम लेने के बाद एक पैचर्ड गारमेंट पहन लिया ऊपर से लेके नीचे तक, जो लगे कि यस ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन विद शेव्ड हेयर, और साथ में सर के सारे बाल गायब करा लिए। और ऊपर आई थिंक बाल गायब करा के वो क्या पहनते थे, ऊपर टोपी पहन लेते थे, जो भी था। तो ये उनका एक लुक था, ये फर्स्ट स्टेप उनका होता था। अब अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स वी विल कम टू स्टडी सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू सिलसिला। पहला, दरगाह। दरगाह का नाम बहुत सुना होगा आपने, इसको इंग्लिश में टॉम्ब श्राइन बोलते हैं, अंडरस्टूड? या आप अरबी में इसको मरकज बोल लेते हैं, दरगाह, मरकज, टॉम्ब श्राइन, इंग्लिश में कुछ भी आप कह लें। दरगाह होती क्या है? द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर द फॉलोअर्स ऑफ शेख आफ्टर हिज डेथ। आई थिंक मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन बताई थी ना शेख की, तो वो शेख ही एक्चुअली में इंटरप्रेटर यानी कि पैगंबर के संदेशवाहक, यानी कि आप कह सकते हो जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद के मैसेजेस को ट्रांसमिट करने वाले सब मैसेंजर, उनको शेख का दर्जा मिलता है इस्लाम में। जैसे आप मोइनुद्दीन चिश्ती मान लीजिए, दरगाह अजमेर शरीफ। जैसे आप मोइनुद्दीन चिश्ती इधर हो गए, इधर निजामुद्दीन हो गए दिल्ली के अंदर, उनकी दरगाह है। तो ये सब क्या थे? दे वर द इंटरप्रेटर्स ऑफ इस्लाम, they were the interpreters of Islam, and they were actually the power who used to transmit the sayings of Prophet Muhammad and Quran to the people to keep them connected. ठीक है, तो वो सिलसिलाज में भी एक तरह से आ जाते थे। बट वो सिलसिलाज में क्या आते थे, वो सबसे बड़ी पावर थे। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद अगर इन्हीं को सबसे ज्यादा माना जाता था तो वो यही थे, जिनको हम कहते थे क्या, शेख। तो सिंपल है, दरगाह उन्हीं, भाई देखिए कोई भी शेख है, किसी भी रीजन का कोई शेख होता था, वो शेख जहाँ भी पैदा होता था, वो जहाँ भी अपने वर्क करता था, जहाँ भी उसके कर्म होते थे, जहाँ भी उसके डूइंग्स होते थे, तो जब शेख साहब मर जाते थे, जब शेख साहब की डेथ हो जाती थी, तो आफ्टर द डेथ ऑफ द शेख, उन शेख साहब के जो फॉलोअर्स होते थे, उन शेख साहब के जो भक्त होते, वो उनकी याद में एक मरकज बना देते थे, एक सेंटर बना देते थे ऑफ डिवोशन, जिससे कि उनके मरने के बाद भी यहाँ पर दुआ नमाज होती रहे, और लोग यहाँ पर अपनी फरियाद, अपनी रिक्वेस्ट, अपने, आप कह सकते हैं कि जो भी हैं जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के मसले उनके पास लेकर आते रहे, क्योंकि वो ये मानते थे कि हमारे शेख साहब शरीर से मरे हैं, आत्मा से नहीं मरे हैं। ये पावर हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे दरगाह किसकी याद में बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेड टू द बिगिनिंग ऑफ जियारत, प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू हिज ग्रेव ऑन डेथ एनिवर्सरी। और ये सिलसिलाओं ने, मतलब सिलसिलाज ने ही शुरुआत की थी कि भाई कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके मरने के बाद भी उसको जिंदा रखने के लिए उसकी कब्र बना दो आप, उसकी मरकज बना दो आप, या आप कह सकते हैं उसका श्राइन बना दो आप। तो इस्लाम में इस तरीके से सिलसिलाज ने एक नई प्रैक्टिस को जन्म दिया, एंड दैट प्रैक्टिस वाज जियारत।
कहते हैं ना कि भाई मैं जियारत करने जा रहा हूँ। जियारत क्या होता है भाई? प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू हिज ग्रेव ऑन डेथ एनिवर्सरी। प्रैक्टिस ऑफ कि भाई आपका शेख जो है, जिस शेख को आप मानते हैं, ठीक है, आप उनकी दरगाह पर रोज नमाज पढ़ें, आप उनकी दरगाह पर रोज जाकर नमाज अदायगी करें, आप वहां पर दुआ करें, फरियाद करें, और वहीं पर आप अपना जो भी है आपके पास जितना है आप क्रेडिट करते रहें, आप चैरिटी भी करें, सब कुछ करें और वहीं पर पड़े रहें। एक तो ये जियारत का पहला पार्ट होता है। सेकंड थिंग, अगर आप चलिए डेली बेसिस पर आप जो है दरगाह पर पड़े भी नहीं, तो ज़ियारत एक तरीके से मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेशनली ऑफिशियली डेफिनेशन इसकी ये होती है कि जब आपके शेख साहब की डेथ एनिवर्सरी होती है, यानी कि जिस दिन वो मरे थे, तो एक साल में ऑब्वियसली एक ही बार आएगा। ऐसा तो है नहीं भाई साल में 10-12 बार आप ये मना सकें कि शेख साहब हमारे 12-13 बार मरे थे। तो जिस दिन या जिस डेट को आपके शेख साहब की डेथ हुई थी, हर साल उसी डेट पर उनकी डेथ एनिवर्सरी उनकी उस दरगाह पर सेलिब्रेट की जाती है। सेलिब्रेट तो क्या की जाती है, मतलब उनके अमरत्य को सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी इमोर्टैलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? तो इसी प्रैक्टिस को हम ज़ियारत बोलते हैं, यानी कि सिंपल प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज। एक तरीके से भाई पवित्र स्थल तो मानते ही हैं कि जहाँ पर भी शेख साहब का मरकज़ है, शेख साहब की कब्र है, वो हमारी पिलग्रिमेज है, वो हमारा धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है। तो उस तीर्थ स्थल पर हर साल में उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जाना और नमाज अदायगी करना, और म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी बहुत होते हैं, वो पहले भी होते थे, उसको हम बोलते हैं ज़ियारत। इस तरह से ज़ियारत की शुरुआत सिलसिला के द्वारा हुई। एंड सेकंड प्रैक्टिस वाज उर्स। उर्स क्या होता है भाई? मैरिज इंडिकेटिंग हिज सोल यूनाइटिंग विद द गॉड, एज द फॉलोअर्स बिलीव्ड दीज थॉट्स ड्यू टू व्हिच they were more closer to the saint after his death, evenly to get their blessings for materialism. Marriage indicating his soul uniting with the god. दो तरह के सेलिब्रेशन शेख साहब के डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स उनके मरकज पर, उनकी कब्र पर, उनकी आई श्राइन पर कह सकते हैं, मनाते थे। फर्स्ट वाज जियारत, जो मैंने आपको समझा दिया। जियारत वाज द फेस्टिवल या जियारत वाज द सेलिब्रेशन which the followers of the sheikh used to celebrate as a practice of pilgrimage on his grave at the time of his death in the form of death anniversary, ठीक है? सेकंड प्रैक्टिस वो करते थे, उर्स बोलते थे उसको, अरेबिक वर्ड उर्स है। उसका मतलब होता था कि ये उर्स उस दिन सेलिब्रेट वो करते थे, और जिस दिन भी ये सेलिब्रेट करते थे, इनका मतलब होता था कि आज के दिन, यानी कि जिस दिन भी ये उर्स मनाते थे, उस दिन का मतलब होता था कि फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग कि आज हमारे शेख साहब की आत्मा अल्लाह से मिल गई। आज हमारे शेख साहब की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई। अकॉर्डिंग टू देम परमात्मा नहीं, अकॉर्डिंग टू देम अल्लाह, अल्लाह से मिल गई। अब इस तरह के दो बड़े सेलिब्रेशन रिलेटेड टू शेख साहब होते थे, अंडरस्टूड? और ये दोनों सेलिब्रेशन दरगाहों पे होते थे, अंडरस्टूड? ऑब्वियसली दरगाह शेख साहब की थी तो दरगाह इस दरगाह पेशेंस थे जो दरगाह, क्योंकि जो फॉलोवर्स होते थे उन शेख साहब के, उन फॉलोवर्स का ये मानना था, उनके विचार थे, ठीक है ना, कि हमारे जो संत हैं या हमारे जो ये शेख साहब थे, ये अल्लाह से कम नहीं थे। तो अल्लाह से कम नहीं थे बट अल्लाह भी नहीं मान सकते, तो इनको एक तरीके का संत का दर्जा इनके फॉलोवर्स दे देते थे। तो इस तरीके से कोई भी शेख जब तक जिंदा रहता था तब तक तो फिर भी इंसान की तरह उसको माना जाता था, लेकिन उसके मरने के बाद उन शेख साहब के जो फॉलोवर्स होते थे, वो फॉलोवर्स शेख साहब को एक सेंट का लेवल बना देते थे, उनको सेंट का लेवल दे देते थे आफ्टर हिज डेथ, जिससे कि पूरी दुनिया उनके वर्चस्व को मानती रहे। और उसके बाद आई थिंक उनको पॉपुलर करने के लिए उनकी कहानियां भी जो है पॉपुलर कर देते थे कि हमारे शेख साहब ने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। सुपरस्टिशियस एंड मटीरियलिस्टिक स्टोरीज उनकी क्रिएट कर दी जाती थी, जिसकी वजह से शेख साहब पॉपुलर हो जाए, और फिर शेख साहब की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती थी कि अब तक तो उनके फॉलोवर्स ही उनको संत मान रहे थे। उनके फॉलोवर्स से जो है वही वाली बात की चेन टू चेन बन के बहुत सारे लोग दूर दूर के जो उनका सिर्फ नाम सुनते थे वो भी उनको सेंट मानने लग जाते थे। एज अ रिजल्ट वो इसलिए करते थे जिससे कि भाई सदियों सदियों सेंचुरीज टू सेंचुरी उनके शेखों का नाम उनकी दरगाहों पर जिंदा रहे, और लोग वहां पर आते रहें और अपना माथा टेकते रहें और दुआ मांगते रहें, और ये नाटक चलता रहे। अब ये नाटक था या रियलिटी थी, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। Therefore evolved the cult of Sheikh as well. इस तरीके से हिस्ट्री के अंदर हिस्टोरियंस ने इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे घटनाक्रम को, या इस पूरे इवेंट को, या इस पूरे प्रोसीजर को एक नाम दिया। वो नाम था कल्ट ऑफ शेख।
एक सिंपल वर्ड थी कल्ट ऑफ शेख, इसको नाम दिया गया वॉल, WALL। एक ऐसी दीवार बना दी गई शेख साहब के नाम पर कि उनके कल्ट को अब आप तोड़ नहीं सकते। उनका कल्ट क्रिएट किया जाता था। जैसे हम कहते हैं ना कि एक कई मूवीज आती हैं, सपोज मानिए हिट मूवीज की मैं बात नहीं करूंगा, सपोजली देयर आर मेनी मूवीज, देयर आर मेनी फिल्म्स व्हिच केम एट द टाइम, बट आई थिंक एट दैट टाइम दोज मूवीज वर नॉट सक्सेसफुल, बट नाउ टुडे दे आर कल्ट बिकॉज उनकी व्यूअरशिप टीवी पर, OTT प्लेटफॉर्म्स पर या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो इतनी रिपीट हो चुकी है, लाइक दे हैव बिकम अ कल्ट, लाइक नायक ऑफ अनिल कपूर, लाइक स्वदेश ऑफ शाहरुख खान। तो ये सारी मूवीज ऐसी हैं जो अपने टाइम पे आई थिंक नहीं चल पाई थी ऑन सिनेमा हॉल, बट आज इतनी रिपीट वैल्यू इनकी हो चुकी है, इतनी रिपीट वैल्यू हो चुकी है, रहना है तेरे दिल में ऑफ आर माधवन, कि आज ये कल्ट का स्टेटस ले चुकी हैं कि नाउ दे आर अनफॉरगेटेबल। इनको आप भूल नहीं सकते, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो चुकी हैं और आगे भी ट्रांसफर होती रहेगी। तो ऐसा ही कुछ इनका भी टारगेट रहता था। तो इसीलिए एक शेख को एक कल्ट बना देते थे, एक शेख की वो ऐसी दीवार खड़ी कर देते थे जिस दीवार से दूसरी दीवार का मुकाबला हो ही नहीं। नाउ कमिंग आउटसाइड द खानकाहा। अब आपको अच्छी तरह पता है कि भाई देखिए खानकाहा क्या थे, सिलसिलात क्या थे, और एक तरीके से अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क होता था वो खानकाहा बोलते थे उसको। नाउ आई वी विल बी टॉकिंग आउटसाइड द खानकाहा। खानकाहा के बाहर क्या था इस्लाम? लिंक्ड टू द मूवमेंट्स ऑफ मिस्टिक्स बाय रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफी आइडियल। ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है। हमने आपको बात बताई, खानकाहा के अंदर इस्लाम को स्पिरिचुअली जो है डिलीवर करने का काम कौन करते थे? सिलसिला। लेकिन वही चीज खानकाहा के बाहर अगर आप आ जाएं तो खानकाहा के बाहर उसी इस्लाम को प्रमोट और प्रवोक करने के लिए इस तरह के मूवमेंट्स लिंक अप किए जाते थे जहां पर आई थिंक रेडिकल सोच होती थी, यानी कि सूफी आइडियल्स को फॉलो तो किया जाता था बट उनके अंदर रेडिकल एलिमेंट्स मिक्स कर दिए जाते थे। अब रेडिकल एलिमेंट्स आप जानते हैं, कट्टरवाद बोलते हैं जिसको, ठीक है। यानी कि खानकाहा के बाहर इस्लाम को फॉलो कराने की जो टेक्निक थी वो बेस्ड ऑन कंप्लीट मिस्टिक्स, मिस्टिक्स मतलब मिथ, एंड along with रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफी आइडियल्स। यानी कि सूफी आइडियल्स का रेडिकल इंटरप्रिटेशन हो जाता था। लाइक सूफियों ने कहा कि भाई खुदा को मानो, ठीक है, तो इन्होंने रेडिकली इसको इंटरप्रेट क्या कर दिया? सिर्फ खुदा को मानो, खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं। अगर खुदा के अलावा किसी और को आप मान रहे हैं तो आप इंसान नहीं है, आप जीने लायक नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ रेडिकल इंटरप्रिटेशन। जबरदस्ती आपने उसमें कुछ नेगेटिव एलिमेंट जोड़ दिए, उस चीज सिंपल थी उसको आपने टिपिकल बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। इसी को हम रेडिकलिज्म बोलते हैं, किसी चीज को रेडिकलाइज करना बोलते हैं। सपोज हम जानते हैं जैसे कश्मीर में कोई इशू आ रहा है, या सपोज चाइना के साथ युद्ध हो रहा है, तो हमारे कंट्री के अंदर कई आई थिंक रेडिकल ग्रुप्स हैं जो खड़े हो जाते हैं और जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स बनाना ही चीजों को रेडिकलाइज करना होता है, क्योंकि उनकी सोच ही आई थिंक डिसइंटीग्रेशन की होती है। देयर थिंकिंग प्रोसीजर, देयर थॉट प्रोसीजर does not support integration of the country on any behalf, therefore they support the process of disintegration। तो ऑब्वियसली उनकी सोच वो रेडिकलाइज कहलाती है। तो वो यहाँ शुरू हो गया, ऐसे मूवमेंट शुरू हो गए इस्लाम में। आउटसाइड खानकाहा की बात हो रही है, दरगाहों के बाहर बात करें तो जहां पर इस्लाम सिर्फ मिस्टिक्स के बेसिस पर रेडिकली इंटरप्रिटेशन के आधार पर चल रहा था, और रेडिकली इंटरप्रिटेशन उन्हीं आइडियल्स का किया जा रहा था जो सूफियों ने दिए थे। अब सूफियों के दिए हुए साफ सुथरे आइडियाज उनको आप जबरदस्ती मिक्सअप करके कॉम्प्लेक्स बनाएं और फिर उस पर जो है अपने फॉलोअर्स खड़े करने की कोशिश करें, तो नाउ यू कैन थिंक दैट ये कितना सही था और कितना गलत था, आप सोच सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोर्ड रिचुअल्स एंड फॉलोड एक्सट्रीम एस्केटिसिज्म। इनकी खास बात क्या थी? इनकी खास बात ये थी, इनका अपना मकसद होता था। इनका मकसद कोई ये बिल्कुल मकसद नहीं था कि ये इंसानियत सिखाएं, इनका ये भी मतलब बिल्कुल मकसद नहीं था इस बात से कि ये रियल इस्लाम लोगों को सिखाएं। बस ये चाहते थे जो इस्लाम ये जानते हैं वही इस्लाम स्प्रेड हो, वही इस्लाम से लोग रूबरू हों, वही इस्लाम से लोग इंट्रोड्यूस हों। यानी कि सिंपल फैक्ट वॉज इग्नोर्ड रिचुअल, यानी कि जो सही रीति रिवाज थे इस्लाम से जुड़े हुए, इस्लामिक ट्रेडिशन से जुड़े हुए, इनको ये लोग इग्नोर करते थे। और सिंपल दे यूज टू फॉलो एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म, यानी कि कट्टरवाद की अति, यानी कि इनकी सोच अतिवादी सोच थी। एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ माइंड देयर वाज, कि जो भी चीज लिखी है उस चीज को वैसे ही फॉलो किया जाए जैसे हम बता रहे हैं। इनकी इस तरह की सोच थी।
एस्केटिसिज्म मतलब खुद के अंदर ही एक आप कह सकते हैं कि एक इगोइस्टिक अपने आप को फिगर क्रिएट कर लेते थे कि इनको खुद को पता नहीं लगता था कि ये इस्लाम का अपने आप को खुदा मानने लग गए और बात ये खुदा की करते थे। तो खुद अपने आप को खुदा मानकर एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने की बात नहीं करते थे। एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पर लोगों को इस्लाम को फॉलो करवाने की बात करते थे और वैसे खुदा के माध्यम से बात करते थे, बट दे यूज्ड टू कंसिडर देमसेल्व्स एज खुदा ऑफ इस्लाम। ये इनकी सोच थी और आइडियल्स वही थे, सूफी आइडियल। थर्ड पॉइंट, known by different names as कलंदर, मदारीज, मलंगिस, हैदरीज एक्सेट्रा। अब देखिए वही वाली बात है ना कि खरबूजा अलग अलग खेतों में उगे, होता खरबूजा ही है, ठीक है ना। कहीं पर किसी तरह का, कहीं पर किसी तरह का, कहीं पर कुछ मीठा होता है, कहीं पर ज्यादा मीठा होता है, कहीं पर फीका होता है, टेस्ट टेस्ट होता तो खरबूजा ही है, मगर खरबूजा खरबूजे को देखकर तुरंत पकड़ता ही है। तो वही चीज यहाँ थी। अब आप कहोगे ये जो लोग थे सर जिसके बारे में आप बता रहे हो, ऊपर के जो सूफी लोग थे इस्लाम के, उनका नाम आपने बता दिया, देवर सिलसिला, और जो खानकाह के अंदर जो है दरगाहों पर अपना काम करते थे और इस्लाम को जो है स्पिरिचुअली लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। ये जो लोग आप बता रहे हो खानकाह के बाहर, ये स्पिरिचुअली नहीं, ये रेडिकली कहोगे सर ये किस किस कम्युनिटी के लोग थे? कोई एक कम्युनिटी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर कल्चर, ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगह से अलग अलग कम्युनिटी बन के निकल रही थी। लाइक कलंदर से कम्युनिटी थी इनकी, लाइक मदारीज एक कम्युनिटी थी, लाइक मलंग मलंग पागल होते थे सारे अजीबो गरीब से समझे, लाइक हैदरीज, ये सब के सब आदित्य राव हैदरी हैं जैसे, तो वो उन्हीं हैदरियों से बिलोंग करती हैं जो एक्सट्रीम होते हैं। So I think we can say that they were known by different names as Kalandars and Madaris, Malangs, Haidaris in different regions. Next point, as referred to as the Sharia, as they defined Sharia, opposite to Ba Sharia, complied with Sharia. ध्यान से देखिए मैंने आपको ऊपर बता दिया था ये एक्सट्रीम किस्म के लोग होते थे। मैंने आपको ये भी बात बता दी कि ये सूफियों का जो आइडियलिज्म था उसको डिफाई करते थे और उन्हीं आइडियल्स को अपने हिसाब से रेडिकलाइज करके पेश करने की इनकी सोच होती थी। तो ऑब्वियसली इन्होंने शरिया को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहली बात तो शरिया के जो लॉज थे वो इस्लाम के लिए ना कल ठीक है, ना आज ठीक है, ना कल ठीक हो सकते हैं। उस शरिया को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। शरिया तो खुद में ही आज के टाइम के हिसाब से भी एक्सट्रीम मानी जाती है, उस शरिया को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था उस टाइम पे। तो आई थिंक जो पहला पार्ट था वो बा शरिया था, और बा शरिया वो बोला जाता था, बा शरिया यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज दैट पार्ट ऑफ शरिया जहां पर लोग ऐसी शरिया फॉलो कर रहे हैं जो वही शरिया है जो शरिया होनी चाहिए, ठीक है। जबकि ये लोग जो आए इन्होंने शरिया का दूसरा पार्ट बना दिया और उस पार्ट को नाम मिला बी शरिया। बी शरिया का मतलब था जो पहली वाली शरिया है उसको ये डिफाई करते थे और ये खुद के ही शरिया के नियमों को और शरिया के कानूनों को इन्होंने लगाया, बनाया, और उन्हीं कानूनों के बेसिस पर ये चाहते थे कि इस्लाम आगे बढ़े। So I think for today it is complete. Now you can come on to the